Today we are going to start with some problems on the Norton theorem. In the previous lectures, we have already understood about the superposition theorem and Thevenin theorem. Today we will solve different circuits using the Norton theorem. What Norton theorem states? It states that any linear circuit containing various energy sources, these energy sources may be voltage or current sources as we did in Thevenin theorem, and a resistance can be replaced by a single current source in parallel with the resistance. Thevenin theorem में हमने क्या किया था? In Thevenin theorem we replaced the whole network by a single voltage source having a series resistance with it. In case of Norton theorems states that कि कोई भी circuit that can be replaced by a single current source having a parallel resistance with it. The value of the current is a short circuit current between the two terminal of the network, means जिन दो terminals के बीच में we have to find out the current that those terminal are to be short circuited, and that current is known as short circuit current, and the resistance is known as Norton resistance. While calculating the equivalent resistance, you have to follow the same method as you did in Thevenin. Thevenin में क्या किया था? जो equivalent resistance हमने find out किया था, while calculating that equivalent resistance, all the sources were removed. Same you have to do in case of Norton theorem also. Whenever we will calculate the equivalent resistance, this is the same equivalent resistance, but this time this equivalent resistance is known as Norton resistance. तो जितने भी sources circuit में given हैं, they all are to be removed or they have to be replaced by their equivalent resistance. Again the same standard you have to follow. Voltage sources को आपने short circuit करना है और current sources को open circuit करना है while calculating the Norton resistance. Let us see the steps which you need to follow while solving the different networks using the Norton theorem. The very first step is again you have to remove the load resistance RL. Load resistance का क्या है? वो टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है, that resistance is known as load resistance, and you have to make the terminals across which the load resistance is applied, that should be short circuit. The very first step, you have to short circuit the load resistance. Then you have to find out the current through that short circuit terminals, and this current is known as Norton current or short circuit current. Again you have to find out the equivalent resistance as you calculated in case of Thevenin theorem also. This time this equivalent resistance is known as Norton resistance. Find out कैसे करेंगे Norton resistance को? Again जब आप equivalent resistance निकालेंगे, voltage sources should be short circuited and current sources should be open circuit. Then you have to replace the network with a single current source having parallel resistance. After finding out the Norton equivalent circuit of any network, you have to find out the current through RL. So whenever you will solve the different circuits using Norton theorem, at the end what you will get, you will replace the whole circuit by a single current source. That current source is known as Norton current, having a parallel resistance with it, that is your equivalent resistance, which you will find this resistance is known as Norton resistance. And finally what you will do, you will replace this RL back and you will calculate the current through this RL, and that current is known as load current. Again you will apply the current divider formula. The current through RL will be equal to Rn divided by RL plus Rn multiplied by the Norton current.
So this is how you will solve any given network using the Norton theorem. Let us start with some examples. Let we have this circuit. Example number 1. The circuit given is, this is again the combination of various resistances and the sources available. These are the two terminal, let it be A and B. Another resistance is given. One more source is provided over here. Let the value is 4 ampere and this resistance is 1 ohm. This is 2 volt. Then 1 ohm resistance is applied across this. This is the circuit given. What you have to do? You have to find current through 10 ohm resistor. What will be the very first step? Step number 1. क्या करेंगे? You have to short circuit the terminal A and B, and this resistance is 10 ohm and we will say it RL. This is our load resistance. So very first step is short circuit RL. So whenever you will make short circuit across this terminal, this will be the equivalent circuit. Thevenin के केस में क्या किया था? We made it open. But in case of Norton, what you have to do? You have to short circuit the terminal across which you have to find out the final current. So this is the equivalent circuit. This is 1 ohm resistance. To solve this circuit, what I am going to do, you can solve the circuit by using different methods. What I am doing here, I will replace this hole by a single current source. As you know, V is equal to IR. We have voltage of 2 volt and resistance of 1 ohm. So you will get the value of current. It will be equal to 2 ampere. So when I will replace this 2 volt and 1 ohm resistance with 1 ampere, with this 2 ampere current source, what will happen? This will be the current source having its internal resistance parallel to it. This is the short circuit terminal A and B. So ultimately this 1 ohm resistance is going to be removed from here. This is 1 ohm. It was 4 ampere given. The value of this resistance is 5 ohm. 5 ohm. This 1 ohm resistance is going to be removed because it has become short circuit. So the net circuit will come out to be, we will remove that internal resistance and only 2 ampere sources available over here. This IN you have to find out. This is the Norton current. This is 4 ampere. किसी भी मेथड को यूज करके, इधर यू कैन यूज मैश, नोड, KVL, KCL, कोई भी मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हैं? यू कैन सॉल्व द सर्किट. दिस वैल्यू इज 15 ohm. Now what we can do, we can apply superposition theorem. We have simplified the circuit. We will apply superposition theorem to find out IN. Applying superposition theorem. You can use any other method also.
सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एक बारी में एक ही सोर्स का इफेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, और जो नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस. दिस वाज सुपरपोजिशन थ्योरम. तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ 2 एम्पियर ड्यू टू 2 एम्पियर सोर्स. जब हमें 2 एम्पियर सोर्स का इफेक्ट फाइंड आउट करना है, दिस इज अगेन अ करंट सोर्स, तो इस ये क्या हो जाएगा, दिस करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किट 2 एम्पियर, sorry it will be short circuit AB. These terminals will be open circuit and this is your 15 ohm, 5 ohm, 15 ohm. So when you will solve it out, क्या आ जाएगा हमारे पास, you have to find out this current. See, अब यहाँ से 2 एम्पियर करंट जब फ्लो कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड हेयर एंड हेयर, बट एज अक्रॉस टर्मिनल A and B it is the current is getting short circuit path, so whole of the current will flow through this AB and no current will flow through 5 plus 15 ohm resistance, 20 ohm total हो जाएगा. तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, what will be the effect, what will be the current through AB due to this 2 ampere, whole of the 2 ampere current will flow through this path as this is the short circuit current. Now we will find out the effect of 4 ampere source. तो जब आप 4 एम्पियर सोर्स का इफेक्ट निकालेंगे, दिस 2 एम्पियर विल बी ओपन सर्किट एज अगेन बिकॉज इट इज अ करंट सोर्स. ये क्या है 4 एम्पियर, और यहाँ पे हमारे पास कितना करंट दिया हुआ है 15, रेजिस्टेंस कितना दिया है 15, और ये क्या दिया हमें 5 ओम दिया है. सो सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस, लेट इट बी I2 दिस टाइम. तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी दिस करंट इज डिवाइडेड, दिस 4 एम्पियर करंट इज डिवाइडेड एट दिस नोड. यहाँ करंट जाएगा और इधर जाएगा, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू दिस ब्रांच. सो अगेन यू विल अप्लाई करंट डिवाइडर फॉर्मूला. तो करंट डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट. So when you will calculate it, it will come out to be 15 divided by 20 multiplied by 4. It will come out to be 3 ampere. See, अब इस 4 एम्पियर की वजह से भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और 2 एम्पियर की वजह से भी द करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू बोथ दी सोर्सेज इन द सेम डायरेक्शन. सो हमारा जो नॉर्टन करंट क्या आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ I1 and I2. It will come out to be 5 ampere. See, we have find it out, we have got here Norton current that is equal to 5 ampere. एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया. मोटिव क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्टन करंट एंड ऑल्सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यू विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to remove the voltage source and the current source. So current source क्या हो जाएगा, open हो जाएगा. This current source will be open circuited and this voltage source will be short circuited and rest of the resistance will be as such, and RL you have to make the open. जब हम इसको open कर देंगे, equivalent circuit बना लेंगे, but you will get this circuit 1 ohm. दिस A एंड B टर्मिनल को ओपन करना है. पिछले स्टेप में क्या था, शॉर्ट सर्किट करना था जब हमें IN फाइंड आउट करना था. अभी हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. दिस इज 15 ओम, दिस इज 5 ओम. ओके, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 5 20 और 1 दोनों पैरेलल में हो गए. 20 ओम पैरेलल टू 1 ओम. सो यू विल फाइंड आउट RN विल बी इक्वल टू 20 multiplied by 1 divided by 20 plus 1. So when you will solve it, it will come out to be 0.95 ohms. Okay, तो अब हमारे पास RN कितना आ गया, 0.95 ohm आ गया. IN हमने कितना फाइंड आउट किया था, 5 एम्पियर फाइंड आउट किया था. So you can draw Norton equivalent
of the circuit. नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? कोई भी सर्किट दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ इक्विवेलेंट करंट source that is known as Norton current and equivalent resistance that is known as Norton resistance. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? 0.95 आई है. And this is your Norton equivalent circuit. But the motive is to find out the current through AB. तो आप RL को भूलना नहीं है रिप्लेस करना. What was the value of RL? It was 10 ohm. So what you have to do? You have to find out the value of current through RL. Let it be IL. तो IL की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? What you have to do? You have to find out current through this branch. Again you will apply current divider formula. Opposite branch resistance divided by total resistance multiplied by the total current. So when you will solve it, it will come out to be 0.43 ampere. यही हमने करना था, करंट फाइंड आउट करना था थ्रू RL and RL was 10 ohm resistance. तो किसी भी नेटवर्क में जो RL है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो RL है, लोड रेजिस्टेंस है? लोड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस अक्रॉस विच यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. Let us see one more example. Example number 2. We will quickly draw the circuit. This is the circuit given. This is 10 ohm resistance, 50 volt. इस सर्किट में हमें 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस ही फाइंड आउट करनी है करंट. तो मैंने ये हमारे टर्मिनल हो गए A एंड B. दिस इज योर 20 ओम रेजिस्टेंस, 40 वोल्ट, सोर्सेस गिवन 20 ओम. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप सर्किट को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन यूज मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, KVL, KCL, जिस भी मेथड से आपको लगता है दैट यू कैन सॉल्व द सर्किट इन अ सिंपल वे, देन यू कैन अप्लाई दैट मेथड टू सॉल्व द नेटवर्क. बट यू हैव टू डू फाइंड I through 10 ohm resistor using नॉर्टन थ्योरम. अब यही नेटवर्क आपसे पूछा जा सकता है कि सॉल्व दिस नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन थ्योरम और सॉल्व दिस नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम और अप्लाई नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस. सो एक सिंपल एक ही सर्किट को आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एज यू हैव टू फाइंड आउट I थ्रू 10 ओम रजिस्टर, सो व्हाट यू विल डू, अगेन दिस इज अवर RL. तो मुझे RL तो पता चल ही गया क्या है. RL क्या है? दिस 10 ओम रेजिस्टेंस. तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट सर्किट थ्रू A एंड B. तो जब आप इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, दिस 10 ohm resistance will be removed and the circuit, equivalent circuit will become this. बाकी सारे सर्किट एज सच रह जाएगा, सिर्फ A और B के बीच में हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट अप्लाई कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द सर्किट विल रिमेन द सेम. नाउ सी, ये जो सर्किट है इसको आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वी यूज सुपरपोजिशन थ्योरम. 2 सोर्सेस गिवन थे और हमने क्या किया? सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर ली. नाउ आई विल सॉल्व दिस सर्किट यूजिंग डिफरेंट मेथड. हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई मैश एनालिसिस. सो आई विल डिफाइन द 3 मैशेस. तीन लूप है मेरे पास यहाँ पे, 3 मैश हैं यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे? लेट इट बी I1, I2, I3. अगेन यू कैन यूज सुपरपोजिशन ऑल्सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सर्किट, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग द मैश एनालिसिस. एंड इन मैश एनालिसिस दिस इज योर लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3. मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं? वी अप्लाई KVL. तो हम क्या करेंगे? अप्लाइंग KVL
एट मैश 1। तो जब आप मैश 1 पे KVL अप्लाई करोगे, द डायरेक्शन ऑफ द करंट वी हैव टेकन इन दीज सेम डायरेक्शन ऑफ करंट वी हैव टेकन। तो I1 इस लूप से फ्लो कर रहा है, I2 सेकेंड लूप से एंड I3 थर्ड लूप से। तो आप क्या करेंगे, वट यू विल डू, यू विल अप्लाई KVL एट मैश 1। वट विल बी द इक्वेशन, इट विल 50 minus 20 into I1 minus I2 minus 40 इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 20I1 माइनस 20I2 इक्वल टू 10। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, मैश 2 पे KVL अप्लाई करेंगे। व्हेन यू विल अप्लाई KVL एट मैश 2, द इक्वेशन क्या आ जाएगी, सी इस वाले लूप पे अप्लाई करना है, मैश 2 पे अप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 40 माइनस 20 इंटू I2 माइनस I1 माइनस 20I2 माइनस 20 इंटू I2 माइनस I3। सो I will apply KVL at mesh 2. It will come out to be 40 minus 20 I2 minus I1 minus 20 I2 minus 20 into I2 minus I3 equals to 0. So when you will simplify this equation, it will come out to be minus 20 I1 plus 60 I2 minus 20 I3 is equal to 40. Let it be equation number 2. इसी तरह से आप थर्ड मैश पे भी KVL अप्लाई कर लेंगे। जब आप थर्ड मैश पे KVL अप्लाई करेंगे, द इक्वेशन विल कम आउट टू बी माइनस 20 I3 माइनस I2 माइनस 30 I3 माइनस 100 इक्वल टू 0। You will simplify it. It will come out to be 20 I2 minus 50 I3 equal to 100. कोई नया मेथड नहीं है ये, मैश एनालिसिस you have already done in previous lectures. So now what you have to do, we have 3 parameters and 3 unknown values. हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इन तीनों इक्वेशंस को। What is the value of short circuit current IN? C. शॉर्ट सर्किट करंट IN इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ I1। इस वाली ब्रांच से IB से कौन सा करंट फाइंड आउट फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। तो वी विल जस्ट सिंप्लीफाई द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ I1, रेस्ट यू नीड नॉट टू बी सॉल्व। तो जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर I1 सॉल्विंग, सिर्फ I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशंस for I1 as I1 is nothing but our short circuit current or Norton current। तो जब आप equations को solve करेंगे, what you will get, I'll rewrite the equations quickly। 20 I1 minus 20 I2 equal to 10। This was equation number 1। equation number 2 क्या थी हमारी, minus 20 I1 plus 60 I2 minus 20 I3 equal to 40। Let it be equation number 2। and 20 I2 minus 50 I3 equal to 100। तो आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे, I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.81 एम्पियर एंड दिस I1 इज नथिंग बट द नॉर्टन करंट। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप वी हैव सॉल्व्ड इट। IN की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.81 एम्पियर। आफ्टर फाइंडिंग IN, what is the next step? You have to find out the value of equivalent resistance, that is Norton resistance। तो Norton resistance फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सोर्सेज गिवन हैं उनको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। सो इन द प्रेजेंट केस वी हैव ऑल द सोर्सेज आर वोल्टेज टाइप, वोल्टेज सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो तीनों सोर्सेज को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। सो आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्सेज, व्हाट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सर्किट। और टर्मिनल जो AB जिसके क्रॉस RL था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था आपने, शॉर्ट सर्किट किया था। अभी शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, वी हैव टू मेक इट ओपन सर्किट
and we have to solve it for the equivalent resistance value. So हम क्या करेंगे, बाकी सारे रेजिस्टेंसेस एज सच लिख लेंगे. इट वाज 20, 20, 20 and 30 ohm. So this is the circuit remaining after short circuiting all the voltage sources. अब हम क्या करेंगे, we have to find out the equivalent resistance. You can see this 30 and 20 are in parallel. तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20, इट विल बी 12 ओम. अब ये जो 12 ओम रेजिस्टेंस है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. यहाँ पे ए है और ये रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम आ गया. इसको भी आप सॉल्व कर लोगे. ये मेरा बी है, तो ये क्या है, 20 इज इन सीरीज विद 12 वोल्ट, तो इट विल कम आउट टू बी 32. 12 प्लस 10, 20 प्लस 10, it will be 32 ohm. Now this 32 ohm resistance is in parallel with 20. तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज अवर आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 20. तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 12.3 ओम. अब दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं. आई एन की वैल्यू क्या आई थी, 0.81 एम्पियर आया था, और आर एन क्या आया, 12.3. तो जो हमारा इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, दिस विल बी द नॉर्टन इक्विवेलेंट. अगेन डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस द आर एल. दिस इज 12.3 ओम, दिस इज 0.81 एम्पियर. तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 10 ओम रेजिस्टेंस. Again you have to find out the value of load current. Load current will be equal to opposite resistance divided by total resistance multiplied by the current applied. Current divider formula apply करेंगे. When you will solve it out, it will come out to be 0.446, that is 0.45 ampere. So this was the requirement. The requirement was to find out the value of current through RL. Let us see one more example. Example number 3. This is the circuit provided to us. अभी सी ये सर्किट हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. लेट इट बी पॉइंट नंबर terminal A, this is terminal B, and this is the resistance 1 ohm. So you have to find out this 1 ohm current through this 1 ohm resistance. This is 2 ohm, 2 ohm, 1 volt. One more resistance is also here, this is 2 ohm. Okay, अब हम क्या करें, you have to find out the value of current through this 1 ohm resistance. Find I through 1 ओम रजिस्टर. तो जिसके अक्रॉस हमने निकालना है वो हमारा लोड करंट होता है. तो लोड करंट हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम. अगेन जब आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या है, शॉर्ट सर्किट ए बी को जब आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे और साथ में हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस दिस सर्किट ऑल्सो. दोनों स्टेप आई एम कंबाइनिंग नाउ. ए बी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो 1 ओम रेजिस्टेंस की जगह एक शॉर्ट सर्किट वायर आ जाएगी हमारे पास, और इस ये दिस वैल्यू इज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट सोर्स इज गिवन एंड पैरेलल क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन. सो वी विल रिप्लेस दिस विद द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स. इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर. 3 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा. एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन डाउनवर्ड, so this will be the value. It means it is -3. Equivalent resistance 3 ohm बन गया इसका. And what you have to do,
you have to find out the current through, this is 1 volt, और ये क्या है मेरे पास, A है, और ये क्या है, B है. मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट. तो अभी हमें क्या करना है, IN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये 2 ओम दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो 2 ओम. सी again you can apply any method. I'm again applying mesh analysis. 3 loops मेरे पास हैं यहाँ पे. This is loop number 1, let the current is I1. This is loop number 2, let the current is I2. This is loop number 3, let the current is I3. So अभी हम क्या करेंगे, again we will apply mesh analysis, the KVL at mesh 1. तो ये मेरा मैश 1 है, ये 2 है, दिस इज मैश नंबर 3. जब आप यहाँ मैश 1 पे केवीएल अप्लाई करेंगे, व्हाट इट विल कम आउट टू बी, इधर से शुरू जाइए, अगेन सी दिस इज योर 3I1 प्लस माइनस, इसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसकी, दिस इज प्लस माइनस. ओके, तो अब आप यहाँ से, but the value will be, I am starting from here, it will be 2 minus 2I1 minus I3 plus 1 minus 3 minus 3I1 equal to 0. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी 5I1 minus 2I3 equal to -2. Let it be equation number 1. नेक्स्ट वी विल अप्लाई KVL एट मैश 2. जब आप मैश 2 पे KVL अप्लाई करोगे, जो इक्वेशन आएगी, इट विल कम आउट टू बी -2 सी minus 2I2 minus I3, I2 minus I3. आप इस वाले मैश में हैं, इस वाले मैश में हैं, यहाँ पे हैं, तो I2 minus I3, दिस इज द वैल्यू 2 ओम है, यहाँ पे आ जाएगा -2I2 -1 इक्वल टू 0. द इक्वेशन विल बी 4I2 minus 2I3 इक्वल टू -1. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. देन यू अप्लाई KVL एट मैश 3. जब आप मैश 3 पे KVL अप्लाई करेंगे, सी है, आप इस वाले मैश में खड़े हैं, इट विल बी -2I3 minus I1 -2I3 minus I1 -2I3 minus I2 equal to 0. It will come out to be 2I1 plus 2I2 minus 4I3 equal to 0. Let it be equation number 3. 3 अननोन पैरामीटर्स हैं, 3 ही वो आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं. When you will solve equation 1, 2 and 3, the value of I1, क्रैमर रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, अदरवाइज आप सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.64 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएगी -0.55 एम्पियर एंड I3 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.59 एम्पियर. नाउ सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट. नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू कैन सी नॉर्टन करंट इज नथिंग बट दिस वैल्यू. नॉर्टन करंट हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो जो मेरा I3 है वही मेरा नॉर्टन करंट है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट है, नॉर्टन करंट इज IN, और यू कैन से शॉर्ट सर्किट करंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ I3, दैट इज -0.59 एम्पियर. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में, यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN. तो RN फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, अगेन यू हैव टू रिमूव द सोर्सेज. तो इन द प्रेजेंट सर्किट हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास करंट सोर्स है और दूसरा क्या है, वोल्टेज सोर्स है. तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वाइल फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा.
This is the value 2, 2, 2 and 3 ohm. तो ये ओपन सर्किट है. और ए बी कहाँ है? ए बी का जो शॉर्ट सर्किट किया था उसको अभी हम क्या कर देंगे? ओपन सर्किट बना देंगे. तो यहाँ इसके क्रॉस हम आर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यू कैन सिंपली सी दिस 2 ओम रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद दिस 2 ओम रेजिस्टेंस. तो 2 पैरेलल टू 2, एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है? ये 3 और 2 भी पैरेलल में है और आपस में क्या है? सीरीज में है. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी 6/5. तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 1.2 मीन्स 2.2 ओम. तो आपकी आर एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2.2 ओम आ गई. राइट. अब हमें आई एन भी फाइंड आउट कर लिया और 2.2 ओम आर एन भी फाइंड आउट कर लिया. व्हाट विल बी द नॉर्टन इक्विवेलेंट? सी व्हाट विल बी द वैल्यू डायरेक्शन ऑफ द करंट दिस टाइम एज I3 इज नेगेटिव. तो हम क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट ले लेंगे. नॉर्मल में हम क्या ड्रॉ करते हैं? दिस, लाइक दिस वी ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट लाइक दिस. दिस इज आई एन, दिस इज आर एन व्हेन द करंट इज पॉजिटिव. बट दिस टाइम द करंट इज -0.5 आई एन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर्स. राइट. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास? 2.2 ओम आया. एंड वी विल रिप्लेस द रेजिस्टेंस दैट इज अवर लोड रेजिस्टेंस. क्या था ये हमारा? 1 ओम था. इसके क्रॉस आपको लोड करंट फाइंड आउट करना है. यू विल फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस लोड आर एल, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 ओम है. ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट अप्लाइड. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल कम आउट टू बी 0.41 एम्पियर. So this is how you can solve various networks using Norton theorem. सेम क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इफ इट इज नॉट आस्क्ड कि किस मेथड से करना है, यू कैन सॉल्व द नेटवर्क यूजिंग इधर मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस और KVL, KCL, सुपरपोजिशन, Norton and Thevenin. So there are various methods by which you can solve the different networks. So that's all for today. Thank you very much.